Assalamu alaikum everyone. In this video, I am going to tell you that what points you people should keep it in your mind when you have started your O level or being a O level student. Look, up to now, up to the class 8 level, you were just going on with the planned studies, and you were getting the guidance from your teacher and you were obeying that, and that's it. But now, from now onward, in your O levels, in your A levels, you have to do some self studies as well. You have to search out on the internet different topics, and I'll be letting you know that how you are going to search, how you are going to use different websites to explore the knowledge which is going to be helpful for you in O levels and A levels, and even in your life ahead, and to get the best grades in these certificates. So first of all, you people should know that when you are choosing a subject, before choosing the subject, you should keep some points in your mind, and that I have made a separate video. You can look into that कि वो points क्या हैं जिनको mind में रखते हुए आपने subject choose करने हैं. Now when you have chosen your subject and now it's the time to study, तो आपको ये पता होना चाहिए कि O level के हर subject का एक particular code होता है, and that code is for the sake of searching the resources, and it's the identity of that course. Let's suppose if we talk about the Pakistan studies, it's 2059. If we talk about computer science, it's 2010. So every subject has its own code. मैं भी आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आपने डिफरेंट कोड्स को एक्सेस करना है ऑन द इंटरनेट, और उससे डिफरेंट रिसोर्सेज कैसे निकालने हैं, और फिर आपने किस तरह से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को एक्सेस करके वहां से सिलेबस निकालना है, एंड देन फॉलो दैट सिलेबस. Although your teacher is going to instruct you about it, but if you are a private student, or even if they are not telling you, you people should know कि आपको stuck रहना है with that syllabus which has been issued by the Cambridge University, और हर एक सब्जेक्ट का अपना एक सिलेबस है जिसको आपने स्टक रह के उसके अकॉर्डिंगली तैयारी करनी है. सारा कोर्स कंटेंट उसी सिलेबस के अंदर मेंशन होता है, कितने पेपर होंगे, कितने कंपोनेंट होंगे, किस तरह से उसकी वेटेज होगी, व्हाट विल बी द टोटल मार्क्स. Each and everything is there in that document, so you should access that document and then you should go on with the study. I'll let you know how to do that. Secondly, what you are going to do, you have to keep on studying the past papers. देखो, आपके पास डिफरेंट वेबसाइट्स हैं. कैम्ब्रिज की ऑफिशियल वेबसाइट है, पापा कैम्ब्रिज है, एंड सो मेनी अदर वेबसाइट्स जिस पे आपको पास्ट पेपर्स मिलते हैं. नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू हैव टू study the past paper. You have to look at the marking scheme of those past papers, then the examiner report and the candidate response. ये चार चीजें आपको मस्ट देखनी है to get good grades. थोड़ा सा सिलेबस कवर हो जाता है, then you should go towards that. कोई एक पेपर ओपन करो, उसमें से कोई क्वेश्चन देखो which you have already studied now, उसको अटेम्प्ट करो. लुक एट इट्स मार्किंग स्कीम, कि मार्किंग स्कीम में उसका आंसर किस तरह से लिखा गया है. देन लुक एट इट्स कैंडिडेट रिस्पॉन्स, एग्जामिनर रिपोर्ट देखो, और फिर कैंडिडेट रिस्पॉन्स की तरफ जाओ. ये चार डॉक्यूमेंट्स आपने मस्ट देखने हैं ताकि आपको एक्चुअली ये आइडिया हो सके कि व्हाट यू आर डूइंग एंड व्हाट एक्चुअली द कैम्ब्रिज इज डिमांडिंग फ्रॉम यू. The most important thing in this O level and the A level is the paper attempting. आप पेपर को attempt कैसे कर रहे हो, that will decide that what grade you are going to get. और उसके लिए जरूरी है कि आप हर पेपर का मीन्स कि हर सब्जेक्ट का पास्ट पेपर सॉल्व करो, उसकी मार्किंग स्कीम देखो, उसके एग्जामिनर रिपोर्ट देखो, एंड देन गो टुवर्ड्स द कैंडिडेट रिस्पॉन्स. तो उससे आपको ये नाउ होगी, उससे आपको ये आइडिया होगा कि हाँ व्हाट आई एम राइटिंग, और अगर मैं ये आंसर लिख रहा हूं, देन व्हाट ग्रेड आई विल गेट एज पर द कैम्ब्रिज. और अगर मुझे उससे अबव ग्रेड पे जाना है, तो व्हाट पॉइंट्स आई एम मिसिंग व्हिच आई शुड इंक्लूड इनटू माय आंसर to get up to there where I am going to get the good grade like A stars and A's. So let's come to the screen now where I'll demonstrate you कि आपने किस तरह से different resources को access करना है over the internet. ओके, तो ये मैं आपको बता रहा था जैसे कि आप लोग अगर कोई भी सब्जेक्ट है ओ लेवल का, जैसे पाकिस्तान स्टडीज़ ओ लेवल मैंने लिखा है, तो जब आप उसको गूगल पे लिखते हैं तो द कोड विल ऑटोमेटिकली कम ओवर देयर. स्टिल यू पीपल शुड नो एंड रिमेंबर योर कोड्स. जैसे मैंने अब यहाँ लिखा है पाकिस्तान स्टडीज़ 2059, तो उसका कोड ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, तो उसका कोड सामने आ गया. और मैंने यहाँ आपके लिए फर्स्ट साइट जो कैम्ब्रिज की है ऑफिशियल वो ओपन की.
अब इसमें डिफरेंट सिलेबसेस आपको नज़र आ रहे हैं, तो यू हैव टू पिक अप द सिलेबस ऑफ द ईयर इन विच यू आर गोइंग टू अपीयर इन टू दैट पेपर। जैसे 2024 का सिलेबस जो है दैट विल बी द सिलेबस ऑफ दो स्टूडेंट्स जो अभी ओ लेवल स्टार्ट कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू अपीयर इन पाकिस्तान स्टडीज़ इस्लामिया आफ्टर 2 ईयर्स, तो वो ये 2024 वाला सिलेबस उनका बनेगा। चले मैंने इसको ओपन किया, अब इसमें पूरी डिटेल है दैट व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन दैट सिलेबस। स्टार्टिंग में इंट्रो है कैम्ब्रिज ओ लेवल्स का, ओ लेवल्स क्यों पढ़ना चाहिए, फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एंड सो। फिर आगे वो बताता है कि इसके टोटल कंपोनेंट्स कितने हैं। जैसे यहाँ उसने बताया इसके 2 पेपर होंगे, एक पेपर 1 होगा दैट इज़ रिगार्डिंग हिस्ट्री एंड द पेपर 2 इज़ रिगार्डिंग ज्योग्राफी। उसकी वेटेज कितनी है, उसके मार्क्स कितने हैं, कितना टाइम एलोकेटेड है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ दैट इज़ द कॉन्टेंट। ये देखो यहाँ से उसने पेपर 1 का कंटेंट स्टार्ट किया है कि आपको ये टॉपिक्स जो है ना इन पे यू हैव टू टेक द ग्रिप, यू शुड हैव अ ग्रिप टू दीज टॉपिक्स एंड दीज क्वेश्चंस। आपको ये कंटेंट देख के इसको फॉलो करना है। इसी तरह अगर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में मैंने देखा स्टूडेंट्स आर मेमोराइजिंग द होल मैप, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। दे हैव मैंशनड कि आपको कौन कौन से सिटीज़ मैप पे पता होने चाहिए, आपको कौन कौन से रिवर्स मैप पे पता होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान की लोकेशन मैप पे क्या है, आपको पता होना चाहिए कौन कौन ये सिटीज़ मैप पे कहाँ हैं, आपको पता होना चाहिए कि रिवर्स कौन कौन से मैप पे रिक्वायर्ड हैं। ही हैज़ मेंशन्ड ऑल द थिंग्स। तो बेटर है कि आप इस सिलेबस को फॉलो करो विच हैज़ बीन मेंशन्ड, विच हैज़ बीन गिवन बाय द कैम्ब्रिज, ताकि आप इजीली उसको कवर अप कर सको। फिर पास पेपर्स की बात करें तो ऐसे ही मैंने यहाँ लिखा पास पेपर्स के नाम से पाकिस्तान स्टडीज़ 2059 पास पेपर्स। तो बहुत से पास पेपर्स की साइट्स आ गई जिसमें से मैंने एक ओपन कर ली और उसमें मैंने 2005 का फोल्डर ओपन किया है। तो ये देखो इसमें वो सारी डिटेल बता रहा है। इसमें ER स्टैंड फॉर एग्जामिनर रिपोर्ट, इंसर्ट, मार्किंग स्कीम, MS, देन क्वेश्चन पेपर P1 P2 उनकी मार्किंग स्कीम्स। हाँ, इसमें एग्जामिनर रिपोर्ट के अलावा कैंडिडेट रिस्पॉन्स नहीं है, वो कुछ पर्टिकुलर पेपर्स का कैंडिडेट रिस्पॉन्स आता है जो ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाता है। दैट इज़ नॉट अ बिग डील, बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। तो क्या आप करने वाले हो, आपने इस तरह से यहाँ से रिसोर्सेज को एक्सेस करना है। आई होप कि आपको प्रोसेस अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपने सिलेबस को एक्सेस करना है। देखो ये सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही वो कंटेंट है जिसको आपने प्रिपेयर करना है फॉर द पेपर। हर एक सब्जेक्ट का अपना कोड और उसका सिलेबस आपने पहले दिन ही इसकी चाहे कॉपी ले लो, चाहे कहीं सिस्टम में स्टोर कर लो, एंड वेन एवर यू आर कंप्लीटिंग अ टॉपिक यू शुड सी कि हाँ अच्छा ये वाला टॉपिक हमने इससे कंप्लीट कर लिया है। इसके थ्रू ट्रेस करना बहुत आसान रहेगा कि आपने कितना सिलेबस कवर अप कर लिया और कितना सिलेबस बाकी रहता है। तो प्लीज व्हेन इफ यू हैव स्टार्टेड योर ओ लेवल, मेक इट योर हैबिट राइट नाउ to go on the Google to find out the information for yourself, to visit the Cambridge site to see that the which syllabus you are following, कौन सा कंटेंट पढ़ रहे हो, उसमें कितना कंटेंट हो गया, कितना कवर अप हो गया, कितना रहता है, ताकि you should not be dependent on the teacher only, you should not be dependent on the instructor only, but you should know yourself that what you are doing. I hope that this information will be fruitful for you. Subscribe my channel for more information. Allah Hafiz.